زہیب اس خبر کو لے کے ایک میں بہت ڈسٹرب ہوئی جب اس کے بارے میں نے پڑھا سنا. اصل میں بالکل سبھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور متضاد آپ کو پتہ ہے نا کہ سوشل میڈیا پر ہر طرح کی خبر آ رہی ہے. اب وہ اتھینٹیکیٹ کیے بغیر بھی سوشل میڈیا کی خبریں کچھ چینل بھی اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں. تو ہم وی آر جمپنگ ٹو دا کنکلوژن بہت ارلی. میں نے اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھا اس خبر کو ایسے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ان کو ہونے دیں, آپ اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں. یہ پہلا میرا مشورہ ہے. میر رضا مرڈر کیس کے بارے میں میر رضا مرڈر کیس کی سوئسائڈ نہیں مرڈر کیس ہی کہیں گے. جی تو یہ کہ آپ نتیجے تک پہنچ رہے ہیں. ابھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز گرفتاریاں ہونی ہیں, جو کچھ بھی ہونا ہے, انویسٹیگیشن ہونی ہے, ایویڈنس کلیکشن ہونی ہے, اس کو پھر کورٹ میں پیش کرنا ہے, سارے معاملات عدالت میں چلنے ہیں, ججز سارے. تو اس سے پہلے آپ جو ہے کوشش نہ کریں. سندھ حکومت نے اب کیونکہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا ان کے فادر کی طرف سے بھی اور بہت سے حلقوں کی طرف سے بھی, تو سندھ حکومت نے اس میں ٹرانسپیرنسی کے لیے اس مرڈر کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا اور فیکٹس پتہ چل جائیں گے کہ ہے کیا, کون ذمہ دار ہے, کس نے یہ سب کچھ کیا اور کیا ہوا, کیسے ہوا. اچھا, وزیر داخلہ ضیاء الانجار گھر گئے ان کے. دیکھیں کیونکہ جب کسی کا کوئی جاتا ہے نا پیارا تو ویسے ہی ذرا شوق و شبہات بھی ہوتے ہیں, دل دکھی بھی ہوتا ہے. آپ کو انتظامیہ جس طریقے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو انتظامیہ اس طرح کام کرتی نظر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ آپ کا نقصان ہوا ہے, الٹیمیٹ لاس ہوا ہے. تو ان کو یہ کانفیڈنس دینے کے لیے وزیر داخلہ پہنچے اور میئر کراچی پہنچے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی اور ان کو باقاعدہ یقین دہانی کرائی کہ بھئی جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. اور متحرک ہے ایکٹیولی سندھ گورنمنٹ اور پولیس, اس پہ تمام ادارے کام کر رہے ہیں تاکہ قاتل تک پہنچا جائے اور اس کو سزا دی جائے. ابھی یہ سیکنڈ جو یہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کیونکہ اس سے کیس کی نوعیت ہی بدل گئی ہے. بالکل. اچھا, وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سمیہ جو ہے ان کی وجہ سے حکومت پر شدید تنقید ہوئی ہے. انہوں نے پہلے پوسٹ مارٹم اور اس پر بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا, بڑے سوالات اٹھائے. تو یہ سارے معاملات ہم جانیں گے کیس کہاں تک پہنچا, تحقیقات کہاں تک. تو علی اکبر صاحب سے پوچھتے ہیں, ان کو پتہ ہوگا, چیف ہیں تو بیورو کے, تو ان کے پاس انفارمیشن ہوگی لیٹسٹ. تو علی اکبر صاحب ویلکم ٹو دی شو, پلیز بتائیے گا, بڑا ڈسٹربنگ کیس ہے یہ. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں. زہیب آپ نے جو اپنے انٹرو میں بات کی نا کہ ہمیں بینگ اے میڈیا, ہم بالکل واچ ڈاگ تو ہیں لیکن ہمیں کسی کنکلوژن پہ ارلیئر ایز پاسبل نہیں پہنچنا چاہیے, نہ ہی ہمیں کیس پہ اس انداز سے اثر انداز ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو اور مین اسٹریم میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے. بات تو اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے, لیکن اس کیس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے. ہم اس کراچی شہر میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بشرا زیدی کیس سے لے کے میر رضا کے مرڈر تک آپ دیکھیں کتنے ایسے کیسز ہوئے جس کے اندر ثانیہ بلدیہ بھی شامل ہے, مصطفیٰ والا کیس بھی شامل ہے جو ابھی کرنسی کے اوپر ہوا تھا جس میں اس باڈی کے اپنی دوست کو جلا دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں شاہ رخ جتوئی کیس ہے, اور اسی طرح سے ثانیہ گل پلازا جو ابھی ریسنٹلی 1 سال پہلے ہوا ہے. ان سارے کیسز میں جو ایک کامن فیکٹر اس کراچی شہر کی بدقسمتی ہے وہ ہے نیگلیجنس. اس کو آپ کرمنل نیگلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں, ہیومن نیگلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو بات آپ نے آخر میں کہی کہ ضیاء الانجار اور آئی جی صاحب نے پولیس سرجن کے اوپر اعتراض اٹھایا اور ان پہ تحفظات کا اظہار کیا کہ انہوں نے کیوں میڈیا پر آ کر یہ ساری جو غفلت جو نیگلیجنس ہوئی ہے ایم ایل بناتے ہوئے, پہلی جو ایم ایل بنی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, بجائے اس کے وہ اس پروسیجر کو آپٹ کرتی ہیں کہ جو سرکاری ہے, یعنی وہ ود ان دا آرگنائزیشن, کیونکہ وہ خود پولیس سرجن ہے, ایم ایل اوز ان کے انڈر میں آتے ہیں, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اعتراض اپنے ادارے کے اندر موو کرتی, لیکن انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا جس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ اور حکومت جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنی. دیکھیں بنیادی طور پہ اس کیس کے اندر جو شروع کے اندر فائنڈنگز آئیں اس میں جب باڈی ریکور ہوئی تو 15 کی کال پر ہوئی, اور اس میں جو نیگلیجنس ہوئی ہے وہاں سے نیگلیجنس کا آغاز ہوتا ہے. باڈی اٹھاتے وقت جائے حادثہ سے جائے وقوع سے نیگلیجنس ہوئی. کس کی طرف سے ہوئی؟ ظاہری بات ہے جب باڈی اٹھانے آتے ہیں وہ نارمل پولیس جو ہے وہ اے ڈی اور چیپا اور اس طرح کی جو ادارے ہیں ان کو بلاتے ہیں, وہاں ایویڈنس ویسٹ ہوا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اس کو ایک ان آئیڈینٹیفائڈ باڈی سمجھ کے اس طرح سے اٹھایا کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کی لوز ہوئی. دین اگین جب اس کی ایم ایل بنی تو ایم ایل میں بھی انہوں نے ان آئیڈینٹیفائڈ باڈی کے طور پر اس کو لیا اور ایک روٹین کا گن شاٹ سمجھتے ہوئے اس کو کیا. وہاں سے انٹیلیجنس کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر وہی والی بات جو آپ نے آخر میں کہی کہ دیکھیں ہر مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, مرڈر ہوا ہے, ریزن کچھ بھی ہے, کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بھی میٹر نکلتا ہے, ان کا فیملی میٹر نکلتا ہے, لین دین کا میٹر نکلتا ہے, کسی قسم کی بھی کوئی دشمنی نکلتی, لیکن اگین کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے اور خود
जाकर इस तरह सा इस अंदाज से फैसला करे। बॉडी के साथ जो कुछ हुआ, जो आपने अभी खुद देखा भी, जो रिपोर्ट्स आई थी इब्तदाई तौर पर कि उस पर जो है कुछ केमिकल्स डाले गए, उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई। फिर अभी जो सेकंड जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसके अंदर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा माया, कोई ऐसा लिक्विड भी उसकी बॉडी से निकाला गया है कि जो कि उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं था। ये क्या हो सकता है? अब इस सिचुएशन में वालिद कह रहे कि यहाँ तक जी बिल्कुल फेल था। तो अब वो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उसके साथ जब उसे टॉर्चर किया गया है तो टॉर्चर में उसके साथ कोई उसको केमिकल पिलाया गया है, क्या हुआ है, हम अभी उसके जजमेंट पे ना अच्छा जाएं। वालिद का मौकिफ क्या है मुझे आप बताएं। देखिए वालिद है? बुनियादी तौर पे मैं फिर एक बात कहूंगा जो कि मुनासिब नहीं है कहना, क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाएगी हम असरअंदाज हो रहे हैं। दोनों तरफ से चीज़ें सस्पिशियस हैं। गवर्नमेंट के एंड पे निगलिजेंस हुई जिसकी वजह से वो केस टेंड कर रहा था टुवर्ड सुसाइड। देन जब फाइंडिंग सेकंड पोस्टमार्टम में आई कि जी ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, तो उन्होंने एफआईआर को भी चेंज किया, उसमें दफात भी चेंज की और टीम भी चेंज कर दी। लेकिन कुछ सवालात फैमिली की तरफ भी उठते हैं कि देखें वो बच्चा निकल कर जा रहा है, आपसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो आप सवाल का पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी कर्जा तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका बेटा गया है तो आप प्लीज़ रियल फैक्ट्स बताएं कि क्या, ताकि मुजरिम तक पहुंचा जा सके। आप हेल्प आउट करें, आप उसको पॉलिटिकल जवाब देके आप इग्नोर ना करें। आपका बेटा जाता है, अपने गार्ड का वेपन उठाता है, इट्स मीन कि समथिंग ही नोज, उसको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। फिर एक गेस्ट हाउस का जिक्र आ जाता है बीच में, वहाँ तक जाते हैं। अभी देखें वही वाली बात है, हमने सारी चीज़ें कंक्लूड कर ली। इस बॉडी से जो सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है उसमें 17 सैंपल्स लिए गए। मैं देख रहा हूँ बाज़ मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, तेज़ाब शर्ट पे था, पसीना शर्ट पे था, फॉरेंसिक। मेरी बात हुई जामिया कराची फॉरेंसिक लैब में अपने सोर्सेज से, उन्होंने टोटली डिनाइल कर दिया। कहना ये किस तरह की चीज़ें मीडिया पे चल रही हैं, ना हमारे पास ऐसा कोई सैंपल आया है और ना ही हमने ऐसी कोई रिपोर्ट दी है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जाए हादसा से मट्टी, घास फूस और वो जहाँ पर ब्लड था वो पीसीज आए थे और खोल आया है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। उसकी एग्जामिनेशन में ये बात साबित हुई कि टॉर्चर तो हुआ है। जी टॉर्चर हुआ है, ये पोस्टमार्टम पे बिल्कुल है, टॉर्चर भी हुआ है और मर्डर भी है, क्योंकि जो एंट्री और एग्जिट ऑफ बुलेट है ना, वो उस पहली वाली एमएल रिपोर्ट में जो लिखा था वो लिखा हुआ था कि फ्रंट से। और वो तेजाब की जो बात हो रही है वो उसके कपड़ों से अभी देखें, अभी ये मैं वही बताना चाह रहा हूं कि 17 सैंपल्स हैं, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अभी केमिकल एग्जामिनेशन होना है, अभी डीएनए होना है। आज डीएनए बायोलॉजिकल सैंपल जो बॉडी से लिया गया अभी तक गया नहीं है वो फॉरेंसिक लैब, आज जाना है वो, आज वो जाएगा। देन उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनका डीएनए लेंगे, डीएनए मैच होगा। डीएनए मैच होने के बाद ये साबित होगा कि ये बॉडी अली रजा की है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा दीगर केमिकल एग्जामिनेशंस में ये बात आएगी कि भाई ये जो क्या नाम है, जो बात कही जा रही कि तेजाब था, उसकी क्या बॉडी में क्या केमिकल्स थे, क्या सूरत हाल थी, तो वो चीज़ें अभी टाइम लेंगी। हम अभी क्यों कंक्लूड कर रहे हैं केस को, लेट्स। तो अली ये बताएं, ये जो सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया है ये अब क्या करेगा? देखिए जुडिशल कमीशन के हवाले से जो पहली बात जो है वो महकमा दाखिला की सिंध की जो चेयरपर्सन है फरियाल तारपुर साहिबा, उन्होंने सीएम को एक रिकमेंडेशन दी थी कि इंसाफ की फराहमी के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। और फिर उसके बाद आपने जैसा कहा कि ज़िया अंजार कल रात गए, महकमा वज़ीर दाखिला जो है हमारे सिंध के, उनके साथ मेयर भी गए और उनके पेरेंट्स को उन्होंने बोला कि जी हम जुडिशल कमीशन तश्कील दे रहे हैं। लेकिन उनके ये जो लॉयर हैं जबरान नासिर साहब, उन्होंने रात गए, ट्वीट किया अपना, यानी एक्स पे एक मैसेज दिया और उन्होंने कहा कि ना फैमिली ने ये रिक्वेस्ट की है जुडिशल कमीशन बनाने की और ना हम समझते कि इस वक्त जुडिशल कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत है। तो जुडिशल कमीशन की इस वक्त फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये फैमिली ने अभी उनके अपने लॉयर के ज़रिए से ये क्लियर किया कि नई जो तफ्तीशी टीम बनी है जिसको हेड करें डीआईजी क्राइम्स आमिर फारूकी साहब, उन पर उन्होंने एतमाद का इज़हार किया। कि सिंध गवर्नमेंट ने ये जुडिशल कमिशन बनाने का क्यों ऐलान किया? बुनियादी तौर पे देखें क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए इतनी ज़्यादा फेक इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाने लगी। खुद हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शजील मेमन साहब, उनके बेटे को इन्वॉल्व करने की बातें की गई, उन्होंने एनसीसीआई की तरफ जाके एप्लीकेशन दी कि भाई ये इस तरह से सोशल मीडिया पे बातें चल रही, ना उनका उस गेस्ट हाउस से कोई ताल्लुक है, ना ही उसमें कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि जो एक एतमाद का फुकदान, पहली पोस्टमार्टम गलत रिपोर्ट नेग्लिजेंस की जो बनी है गवर्नमेंट और उनकी फैमिली के, विक्टिम की जो फैमिली है उसके दरमियान खराब हुआ, उसकी ब्रिजिंग के लिए। तो वालिद इस पर एग्री क्यों नहीं कर रहे? अभी जो उनके लॉयर उन्होंने कहा इस स्टेज पर हम नहीं समझते कि अभी हमें ज़रूरत है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो फाइंडिंग, जो ये नई तफ्तीशी टीम बनी, हमें इस पर एतमाद है
आमिर फारूकी साहब पर एतमाद है, उनकी टीम पर एतमाद है और उनको तफ्तीश करने दी जाए। अगर हम ऐसा समझते हैं आगे चल के कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि बनाया जाए। ताहम गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, वज़ीर दाखिला ने कहा है आज इसका ज़्यादा इम्कान है कि सिंध गवर्नमेंट अपना अदालत की रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन भेजेगी कि भाई ये कमीशन बनाया जाए, उसके TORs बनेंगे, उसकी फिर डिटेल्स बनेंगी। लेकिन अब इस सिचुएशन में कि जब रात गए उनके लॉयर ने कहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले, फिलहाल अभी तक कोई ऐसा डिसीजन सामने नहीं आया कि जुडिशियल कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट विलिंग है, बनाना चाहती है। अगर फैमिली नहीं बनाना चाहती, सिविल सोसाइटी का किरदार इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए इसमें, और अली आपका भी इतना एक्सपीरियंस है, थोड़ा अपनी भी फाइंडिंग्स बताएं इस केस को लेके जो आप फैक्ट्स आपके सामने हैं। देखें इसमें बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा ना कि दोनों तरफ कुछ ग्रे एरियाज हैं। गवर्नमेंट वाला ग्रे एरिया किसी हद तक क्लियर हो गया कि उन्होंने केस को जो बुनियादी तौर पे इब्तदाई तफ्तीशी जो ग्राउंड्स रखा था वो सुसाइड रखा था। अच्छा, उसके अंदर मैं आपको बताऊं जो फाइंडिंग्स थी ना वो सुसाइड की तरफ ही जा रही थी कि भाई एक बच्चा है 25 ईयर्स है, उसने अभी अपना एंटरप्रेन्योर है, उसने अपना एक बिज़नेस शुरू किया, एक अच्छे अंदाज से शुरू किया, उसकी कोई एनिमिटी नहीं है, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो आता है घर घर पर आकर अपनी सारी चीज़ें देता है, अपने अकाउंट से पैसे मुंतकिल करता है, फिर वहाँ जाता है, वहाँ से गन उठाता है और उसके बाद उसको वो उसकी लाश मिलती है ना। इस पूरी फाइंडिंग्स के अंदर जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आ रही थी कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्योंकि फ्लॉजेस थे जो 14 निकात पुलिस सर्जन सुमैया ने उठाए हैं तो वो बिल्कुल वैलिड थे कि भाई इसमें ये हुआ ये हुआ। अगर सुसाइड था तो आपने बारूद के वो क्यों नहीं लिए, एग्जामिनर क्यों नहीं लिया कि बॉडी पे बारूद था? क्योंकि अगर उसने हाथ से फायर किया, आपने खुद फायर किया तो उसके हाथ पे बारूद आना चाहिए था, वो एग्जामिन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पीछे से गोली लगी, ये सारी चीजें जो थी वो उसने सस्पिशियस बनाया। लेकिन इन्होंने जो तफ्तीश की थी उसमें इन्होंने उसकी जो वॉच थी उसको डिकोड कर लिया है। वॉच को डिकोड करने के बाद उनके पास डाटा आ गया है और कल रात जो हमारे क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद रज़ा ने खबर ब्रेक की थी उसमें उसने बताया कि अप्रैल से लेके 28 जुलाई तक जितनी भी उसकी कॉल का डाटा है वो पुलिस के पास आ गया है। और उसमें उन्होंने बाकायदा सिर्फ 27 की रात पूरा दिन और 28 की सुबह तक किससे मिलने की अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, लेकिन जो कॉल्स आई हैं वो कॉल्स को एग्जामिन किया जा रहा है। किसकी आखिरी 2 बजे कॉल आई थी, वो कौन था, उससे एक नंबर ऐसा है कि जो उसके रिकॉर्ड में नहीं था, उसको उन्होंने सस्पिशियस कहा कि भाई हम इसको देखेंगे कि ये किसका नंबर है। लेकिन बार बार जो तफ्तीशी अफसरान है उनका भी यही कहना है कि पुलिस क्या बता रही है, जगह वही है, जगह वही है। अभी तक तो जहां से बॉडी मिली है वो यही कह रहे हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि आया मर्डर उसी स्पॉट पे हुआ है या कहीं और टॉर्चर करने के बाद उसका वहां मर्डर हुआ और बॉडी वहां फेंकी गई है। तो ये अभी मामला हल होना है, इसलिए उनको डाटा चाहिए, पुलिस को टाइम चाहिए। ये एक देखिए 2 एंगल हो गए ना, एक तो ये एंगल हो गया जो पोस्टमार्टम हुआ उससे 17 सैंपल्स लिए गए, उसका फॉरेंसिक होना है, DNA होना है, उससे रिपोर्ट आनी है। दूसरी तरफ पुलिस के पास जो एविडेंसेस हैं, जो उनके पास डाटा आया है, जो उनके पास उसके बॉस से उसके फ़ोन से डाटा आया और मजीद उस डाटा पे वो काम कर रहे हैं, देन उनको लीड्स मिलेंगी। फिर उन्होंने मजीद कहा कि हम उस इलाके की मजीद CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें और वाज़ेह हो, क्योंकि एक अनक्लियर सी कंडीशन है कि वो आया उतरा और फिर उसके बाद वो एक हद तक तो नजर आ रहा है, उसके बाद वो गायब है। अच्छा, किसी भी स्टेज पे इस लड़के ने कोई रिपोर्ट नहीं किया किसी भी इदारे को? होता है ना कि आप रिपोर्ट करते हैं कि अगर कोई तंग कर रहा है, कोई मुबैना भत्ते की कॉल है, तो आप बताते हैं कि यार मुझे भत्ते की कॉल आ रही है, मैं क्या करूँ, आप मेरे साथ। देखिए लोन वाला मैटर तो है, लोन वाला तो हो गया, एक फैमिली किसी इदारे को रिपोर्ट नहीं किया उसने इससे पहले किया, और उसकी कुछ कॉल रिकॉर्ड्स जो मीडिया को रिलीज हुई, कई सोर्सेज ने रिलीज की, हमने नहीं चलाई बहरहाल, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने चलाई हैं। उसको उनके वालिद ने डिनाइल किया, ये उसकी ऑडियो नहीं है। लेकिन उसके वालिद ये भी डिनाइल नहीं कर रहे कि जो लोन का इशू था कि नहीं था। वो एक जवाब देते हैं पॉलिटिकल सा कि पूरे पाकिस्तान पे कर्जा है, मेरे बेटे भी था तो क्या हुआ। तो ये चीजें ऐसी हैं कि नहीं, आप क्लियर करें ताकि पता तो चले कि मैटर क्या वालिद तो देखें उसके वो तो उसके सुसाइड को वो कर रहे हैं ना, डिनाई कि सुसाइड नहीं की, और वो नजर भी आ रहा है एविडेंस से कि सुसाइड नहीं है। आपने खुद अपनी बात में ये बात कही कि कोई भत्ते की कॉल आई हो, कोई ऐसी चीज हो, तो ये चीज कहाँ से मिलेगी? ये टिप तो घर वाले देंगे ना कि बच्चा परेशान था, सही है। उसके अगर वो लोन तो वो सवालात हैं अपनी जगह पर कि भाई वो पता तो चले फैमिली के वालिद से शेयर करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मुझे तो लगता है कि हर कोई जर्नलिस्ट बन गया आजकल,
خود ہی رپورٹنگ کر رہے ہیں, خواتین بھی ہیں اس میں, کچھ مرد بھی ہیں, جن کو اپنے ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ دیکھیں جی آڈیو دیکھیں, یہ ویڈیو دیکھیں, ہمیں یہ لگتا ہے, یہ پتہ چلا ہے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے اس وقت, اور یہ بہت زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جو ویڈیوز بناتے ہیں انفلوئنسرز ہیں, انفلوئنسرز بھی نہیں, پتہ نہیں کون ہے, اصل میں ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ تو کوئی بھی جرنلسٹ بن جاتا ہے, لیکن یہ کیس کو کتنا ڈیمیج کرتا ہے. اور یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ غلط فیکٹس دے کے غلط طرف جو ہے آپ کیس کو لے جا کے انفلوئنس کر سکتے ہیں, کسی کے بھی جو دس لیول کسی کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں, لوگوں میں غلط جو ہے نا آپ غصہ ٹینشن پھیلا رہے ہیں, یہ والی بات ہو گئی, یہ ہوگی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, یہ بڑا خطرناک ہے. آپ نے سول سوسائٹی والی بات کی تھی بالکل اسی وجہ سے, کیونکہ وہ جو انفلوئنس ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے, اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, مختلف انفارمیشن شیئر ہو رہی ہیں, مختلف انداز سے جو چیزیں وہاں پہ ڈالی جا رہی ہیں, تو وہ امپیکٹ ڈال رہی ہے سوسائٹی پہ. لیکن سوسائٹی کا جو پازیٹیو پوائنٹ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ غلط خبر دیتا ہے, غلط چیز پھیلاتا ہے, غلط تاثر دیتا ہے.